Good morning, students. How are you all? Hope you all are well. Today I am going to present the new chapter, that is income from salaries, which is given under section 15 to 17 of the Income Tax Act 1961. Okay. This is the introduction part because income from salary is a vast chapter in the income tax. You know very well there are 5 heads: income from salary, income from house property, income from business or profession, income from capital gain, and income from other sources. Income from salary is most important and very vast chapter in comparison to other chapters. Okay. So in introduction part, this is the part 1 video. There will be another part of this video. In part 1 video, we will discuss about what is salary, what is the place of accrual of salary, some important points regarding salary. Okay, there are various important points. One by one, I will come on the topic. The first, what is salary? Wife expects from her husband 6 things. What are they? Number 1, sincerity, affection, love, attention, respect, and you in total. You means the husband in total. But the problem is that how to learn all these 6 things in a sequence. So, she has invented a short form. Sincerity, short form is S. Affection is A. And love, that is L. Attention, that is A. Respect, that is R. And Y, you in total, that is Y. U, that is Y. This is called salary. Okay? I think all of you are clear what is salary. No. This is only the joke and forget it. Now, actually, what is the real meaning of salary? What is salary? It is given under section 15. Any remuneration which is made by the employer to his employee in consideration of his service, that is called salary. Okay? It is given in monetary form also. It includes the monetary value of those benefits and facilities provided by the employer which are taxable. Clear? The second point is place of accrual of salary. Where are the place of accrual of salary? It means salary is accrued in India or in outside India. If it is accrued or arisen or deemed to be accrued or arisen in India, it means that is the place of accrual of salary is in India and it will be taxable in India. Suppose the person retired and after retirement he goes to outside of the country and settle at that place. If he receives pension from that places, it will be deemed to be accrued in India, so it will be taxable under the head salary in India. Clear? इसी तरह से मान लीजिए वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट ने अपने ही कंसर्न से ही किसी दूसरे कंसर्न में अदर कंट्री में उसे भेजा है, तो दूसरे कंसर्न में जाकर के भी उसे जो सैलरी मिलेगा दैट इज
टैक्सेबल इन द अंडर द हेड सैलरी, और उसे इंडिया गवर्नमेंट को ही उसे टैक्स पे करना होगा, और उसे इंडिया में एक्रूड किया हुआ ही इंडिया में ही माना जाएगा। ठीक है, चाहे भले वो इंडिया के बाहर उसे भेजा गया है और इंडिया के बाहर ही वो काम कर रहा है, बट ये सैलरी इंडिया में माना जाएगा। बट सैलरी के साथ साथ अगर कोई अलाउंसेस वगैरह उसे दिए जाते हैं या परक्विजिट्स वगैरह इंडिया के बाहर दिए जाते हैं, तो वो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगा, वो एग्जम्प्ट होता है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सैलरी, जिसमें आपको मैंने बताया था सैलरीज, बहुत सारे आइटम सैलरीज में आते हैं, सैलरी ड्यू, सैलरी पेड, ठीक है, सैलरी रिसीव्ड, सैलरीज एक्रूड, ये सब सैलरीज के अंदर आते हैं। और सैलरी में भी कई टाइप के होते हैं, एडवांस सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी। एरियर्स ऑफ सैलरी मीन्स जो सैलरी ऑलरेडी आपने ड्यू हो चुका है बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, दैट इज कॉल्ड एरियर ऑफ सैलरी। और एडवांस सैलरी, सैलरी पेड बट नॉट ड्यू, दैट इज कॉल्ड एडवांस सैलरी। तो ये सब सैलरीज के ही पार्ट है। इसके साथ ही साथ सैलरीज के पार्ट में आप देखेंगे बहुत तरह के, इसमें एन्युटी, फीस, ये सारी चीज़ पे इसमें आएंगे, बोनस, ये दिस आर द पार्ट ऑफ सैलरीज। सेकेंड है रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दिस इज वेरी important under the head salary. What is the relationship of employer and employee? It means there must be a relationship between the employer and employee as a payer and payee or master and servant. It's clear? Master and servant and employer and employee, this is very essential. Clear? Next is the pension. Other important points regarding salary is pension. Pension is also part of the salary. After retirement, if the employee is getting pension from his employer, okay, that comes under the head salary. And pension in the form of old pension system or new pension system or unified pension system. Unified pension system अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, वो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा, बट ये सभी सैलरी के ही हेड के पार्ट होंगे। नेक्स्ट है फॉरेन सैलरी एंड पेंशन। ठीक है, फॉरेन में अगर कोई व्यक्ति इंडियन व्यक्ति है और वो इंडिया से बाहर फॉरेन में चला जाता है और उसे सैलरी वहाँ पर मिलती है और यहाँ से ही कंपनी द्वारा उसे भेजा गया, वहाँ पर उसे सैलरी मिलती है, उसके बाद वो रिटायर हो जाता है, फिर पेंशन भी मिलता है, तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सैलरी हेड। करेक्ट? नेक्स्ट इज द फैमिली पेंशन। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का मतलब ऑलरेडी एम्प्लॉय का अगर डेथ हो जाता है, ठीक है, तो उसके फैमिली को उसका पेंशन मिलता है। तो एम्प्लॉय के डेथ हो जाने के बाद फैमिली को जो पेंशन मिलता है, वो पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि वो पेंशन, दैट पेंशन इन द हैंड्स ऑफ द फैमिली मेंबर इज द अदर सोर्सेज इनकम। सैलरी ऑफ ए एमपी, अब आप देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर सैलरी दी जाती है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सैलरी अंडर द हेड सैलरी, बिकॉज MP, member of parliament, is not the servant of a government. ठीक है, they are the elected person, and if they are getting MPs और MLA, MLC, इन लोग को अगर सैलरी मिलती है, MP, MLA, MLC, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको जो भी सैलरी मिलती है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का पार्ट नहीं होता है, that is the part of income from other sources. They are elected person, not the selected person. तो selection is very essential. जब हम सैलरी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर सैलरी पाने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना होता है? सिलेक्ट।
तो सिलेक्शन इज वेरी एसेंशियल। ठीक है, जब आप सेलेक्ट होते हैं तो नेचुरली आप क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस। क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस। ठीक है, और जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो यू आर कॉल्ड सर्वेंट। ठीक है, और सर्वेंट को जो मिलता है डेट इज कॉल्ड सैलरी। 4S कह सकते हैं। तो यहां पर एमपी की बात जब हम कर रहे हैं, चाहे एमपी हो या एमएलए हो या एमएलसी हो, इन सबको जो भी सैलरी प्रोवाइड की जाती है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट द सर्वेंट। वो नौकर नहीं होते बल्कि वो जनता के सेवक होते हैं, इसलिए इनकी सैलरी जो होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में नहीं आती है। क्लियर? उसी तरह से सैलरी ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर को भी जो सैलरी मिलती है, तो पार्टनर ऑफ अ फर्म, सैलरी ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, फर्म में जो पार्टनर को सैलरी जाती है, पार्टनर फर्म के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, वो उसके एम्प्लॉय नहीं होते, इसीलिए पार्टनर को भी जो सैलरी दी जाती है वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड का पार्ट होता है, न कि इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का। क्लियर? नेक्स्ट आपका जो हेड है, नेक्स्ट जो हेड है वो है आपका सैलरी ग्रेड और पे स्केल। नेक्स्ट हेड इज द सैलरी हेड, सैलरी ग्रेड और पे स्केल। क्लियर? सैलरी ग्रेड और पे स्केल, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कोई भी एम्प्लॉय जब वो, कोई भी पर्सन जब वो फर्स्ट ज्वाइन करता है जॉब में, तभी वो किसी कंसर्न का एम्प्लॉय होगा, तो उसे जो सैलरी दी जाएगी वो एज पर ग्रेड बेसिस पर दी जाएगी या पे स्केल बेसिस पर दी जाएगी। और आजकल तो 7th पे कमीशन से पे बैंड का सिस्टम आ गया, पे बैंड बेसिस पर दी जा रही है। तो सैलरी ग्रेड और पे स्केल क्या है? उसी बेसिस पर हम सैलरी को, बेसिक सैलरी कैलकुलेट करते हैं, उसकी एनुअल इंक्रीमेंट कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके ऊपर अदर अलाउंसेस वगैरह का कंप्यूटेशन करते हैं, परक्विजिट्स का कंप्यूटेशन करते हैं। तो सैलरी ग्रेड क्या है? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति 20,000 पर अपॉइंट होता है, तो फर्स्ट यहाँ पर होगा सैलरी ग्रेड। तो 20,000 पर वो अपॉइंटमेंट होता है और उसे 200 ये ग्रेड दिया हुआ है, और इस तरह करते करते 30,000 तक जाएगा। फिर दिया हुआ है 400, फिर वो जाएगा 40,000, फिर दिया हुआ है EB और यहाँ पर दे रहा है 700, और फिर वो आएगा 50,000। सपोज करिए इस तरह से सैलरी ग्रेड या सैलरी स्केल दिया हुआ है, तो इट मीन्स जब वो पर्सन फर्स्ट अपॉइंटमेंट उसका हो रहा है तो फर्स्ट उस किस ग्रेड पर अपॉइंटमेंट होगा? दैट इज 20,000। 20,000 पर उसका अपॉइंटमेंट होगा तो उसे फर्स्ट ग्रेड सैलरी क्या हो गई? 20,000। ये जो 200 है, 400 है, दीज आर द इंक्रीमेंट एवरी ईयर। इंक्रीमेंट क्या होती है? एवरी ईयर इंक्रीमेंट दी जाती है। इसका मतलब मान लीजिए वो अपॉइंटमेंट हुआ है आपका 1 अप्रैल 24 को, वो अपॉइंटमेंट उसका हुआ, तो 1 अप्रैल 24 को उसका बेसिक सैलरी ग्रेड क्या हो जाएगी? 20,000। 1 अप्रैल 24 को 20,000 मिलेगा और 20,000 के बाद 200 रुपये का इंक्रीमेंट कब बनेगा? 1 अप्रैल 25 से उसकी सैलरी क्या हो जाएगी? इसमें होगी उसकी 20,000 और इसमें हो जाएगी 20,200। एवरी ईयर उसे मिलता जाएगा 200 200 200 करके ऐड होता जाएगा। कब तक ऐड होगा? जब तक कि उसकी सैलरी बढ़ करके 30,000 ना हो जाए।
इट मीन्स 20,000 इंक्रीज होकर के जब 30,000 हो जाएगी उसकी बेसिक सैलरी ग्रेड, तब तक 200 रुपीज एवरी ईयर इंक्रीमेंट उसे लगेगा। फिर इंक्रीमेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 400 का इंक्रीमेंट उससे शुरू हो गया। ये एक इमेजिनरी फिगर है, उस बेसिस पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 400 करके इंक्रीमेंट होगा, तो 30,000 के बाद फिर नेक्स्ट ईयर में 30,400, फिर 400 जाएगा 30,800, करेक्ट, फिर 31,200, इस तरह से 400 करके इंक्रीमेंट होता जाएगा। कब तक होगा? जब तक कि उसकी सैलरी बढ़ करके 40,000 ना हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट एक पॉइंट दिया हुआ है EB, ये बहुत जगह समझ में नहीं आता है। EB का मतलब होता है एफिशिएंसी बार। क्या होता है? एफिशिएंसी बार माने उसके काम करने की एफिशिएंसी। मान लीजिए वो एक ही ग्रेड पर रह जाता है, उसका प्रमोशन नहीं होता है। काफ़ी आपने देखा होगा बैंक वगैरह में, जॉब में देखते होंगे कि कोई क्लर्क कम कैशियर में एंट्री करता है और क्लर्क कम कैशियर में ही वो रिटायर हो जाता है सेम पोस्ट पर, करेक्ट। वो कहीं पर ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहता है और जिस वजह से वो आगे प्रमोशन भी नहीं लेता है, सेम ग्रेड पर रहता है। तो एज पर सीनियरिटी बेसिस उसकी सैलरी तो इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पर एक उसका लगेगा एफिशिएंसी बार, मतलब अब उसके वर्क करने की एफिशिएंसी कितनी है ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, क्योंकि वो अब सीनियर हो रहा है। तो सीनियरिटी बेसिस पर उसकी एक एफिशिएंसी बार लग जाती है, जिसमें ये देखा जाता है कि वो कितना सीनियर हुआ है। तो उसका एक नॉमिनल डिपार्टमेंटल लेवल पर ही उसका एक इंटरव्यू टाइप का हो जाता है उसी जगह पर, और फिर उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है। कितने रुपए? 700 रुपीज़ पर इंक्रीमेंट उसकी हो जाती है। तो 700 रुपीज़ पर जब इंक्रीमेंट हो जाएगी, इसका मतलब एवरी ईयर 40,000 के बाद से उसका 700 रुपीज़ करके उसका इंक्रीमेंट लग जाएगा, करेक्ट। तो 40,700, फिर उस पर और 700 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ता जाएगा, और कब तक बढ़ता जाएगा? टिल हिज रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट तक उसकी सैलरी कहाँ हो जाएगी? 50,000 उसकी सैलरी हो जाएगी। और ये 700 तक तब तक इंक्रीमेंट होती जाएगी जब तक कि उसकी सैलरी बढ़ करके 50,000 ना हो जाए। दैट इज कॉल्ड सैलरी ग्रेड। उसी बेसिस पर उसकी बेसिक सैलरी हम बनाते हैं, गवर्नमेंट तैयार करती है, एम्प्लॉयर बनाता है, और उस बेसिक सैलरी पर उसके अलाउंसेस या परक्विजिट्स वगैरह का कैलकुलेशन होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट इज द पेमेंट मेड आफ्टर सीसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मान लीजिए वो एम्प्लॉयमेंट में है और उसका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाता है और उससे संबंधित उसको किसी भी तरह का कोई पेमेंट मिलता है। ठीक है, उसका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाने पर उसको अगर पेमेंट मिलता है, दैट इज़ वन टाइप ऑफ कंपेंसेशन। तो ये भी टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, ये किसी अदर हेड में नहीं जाएगा। किस में जाएगा? क्योंकि वो जहाँ जॉब कर रहा था वहाँ से ही उसे कंपेंसेशन के रूप में मिलता है। तो चाहे वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले तो उसका भी एक कंपेंसेशन मिलेगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के थ्रू भी उसको कंपेंसेशन नहीं होता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पर उसे एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, और अगर उसे रिट्रेंच कर दिया गया, मान लीजिए उसकी सेवा समाप्त हो गई या जॉब में ज़रूरत थी तो उसको एक कंपेंसेशन के रूप में दिया गया। तो दैट इज़ द पेमेंट मेड आफ्टर सीसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें ये बात कही गई कि पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉय आफ्टर द सीसेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। ठीक है, ये ऐसा रेम्यूनरेशन को बताता है कि जिससे कि उसने सर्विसेज जो है प्रोवाइड किया था इन पास्ट, पहले उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया था जिसके बदले में उसे ये चीज़ें दी गई। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है दैट इज द ड्यू डेट ऑफ सैलरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ड्यू डेट ऑफ अ सैलरी को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सैलरी जो ड्यू होती है वो दो तरह से ड्यू होती है। एक तो वो जो लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ, क्या होती है? लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ। मान लीजिए इस मंथ में हम इस मंथ में हमारी सैलरी हो रही है, इस मंथ हम काम कर रहे हैं, तो
1 अप्रैल 24 को मान लीजिए ज्वाइन हुआ है, तो 1 अप्रैल 24 को उसकी जो सैलरी बनेगी, कब बनेगी? 30 अप्रैल 24 को, लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ। और एक ड्यू होती है फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब 1 अप्रैल को उसने काम करना शुरू किया, पूरा महीना काम किया, और नेक्स्ट उसका जो ड्यू होगा वो होगा 1 मई 24। करेक्ट? ये दो उसके होते हैं, दो तरह से ड्यू होता है। आपके क्वेश्चन में भी यही मिलेंगे। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में यही पढ़ लेना है कि सैलरी इज ड्यू लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ है या सैलरी इज ड्यू फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये किसके लिए है ये भी मैं आप थोड़ा सा जान लें कि जैसे इन द केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के लिए क्या है कि इट इज ड्यू ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के लिए क्या है? इट इज ड्यू फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। बाकी अदर्स के लिए होता है कि लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ। अदर कंसर्न जितने भी हैं आपके, वो है नॉन गवर्नमेंट बॉडीज वगैरह है, तो उनके लिए यही है कि लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ ही ड्यू होता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सैलरी। आपको सैलरी चैप्टर को पढ़ने से पहले इसके बारे में एक जनरल अवेयरनेस आपको जानना था, वो मैंने दिया। आई होप इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। आप इसे देखिए, समझिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम सैलरी को अलग से एक्सप्लेन करेंगे, इसकी डिटेल में जाएंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।